السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کلاس میں انشاءاللہ تعالی فیوجن اکیڈمی کی طرف سے ایک اسپیشل کلاس ہوگی 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو 10th کا ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ ایک گرامیٹیکل پوائنٹ ہے جس کو اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، ایون کہ بہت سے ٹیچرز بھی اس چیز کو بہت ہی مشکل سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلباء و طالبات ہیں، جو ان کو اب کچھ دنوں کے بعد 10ویں جماعت کا امتحان دینے جانا ہے، اس میں اپیئر ہونا ہے، ان کے لیے یہ خصوصی میں یہ کلاس بنا رہا ہوں، یہ لیکچر تیار کر رہا ہوں یا یہ لیکچر تیار کیا ہے۔ اور یہ جو ہے لیٹر رائٹنگ میرا ٹاپک رہے گا، جس کو ہم اردو میں مراسلہ نگاری یا خطوط نگاری یا خطوط نویسی بھی پڑھتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز میں اسٹوڈنٹس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا، پھر اس کو اپروپریٹ ایگزام میں پیش کرنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کو آسان بنانے کی یہاں پر کوشش کروں گا، اور میں کسی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پر آتا ہوں۔ اور ٹاپک میں نے پہلے ہی مینشن کر رکھا ہے، لیٹر رائٹنگ۔ لیٹر رائٹنگ پہلا پوائنٹ آپ یہاں پر یہ سمجھیے، لیٹر رائٹنگ مراسلہ نگاری یا خطوط نگاری۔ پہلا پوائنٹ آپ یہ سمجھیے، لیٹر رائٹنگ، لیٹر کے ساتھ رائٹنگ کا لفظ ہم کیوں لکھتے ہیں، اس پر آپ غور کریں۔ ایک گرامٹیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ عام طور پر یہ چیز بھی اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتی ہے۔ لیٹر کے ساتھ ہم رائٹنگ کا لفظ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکچولی یا بیسیکلی یا بنیادی طور پر رائٹنگ سکلز میں آتا ہے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں لیٹر، ان کو بولتے ہیں یاد کرنے کے لیے، جبکہ ان کو سکھانا ہے کہ یہ لیٹر لکھتے کیسے، اس کا کوئی سیلیبس نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ فلانی لیٹر یاد کر کے جائے، وہ ایگزام میں آئے گا۔ اس کا کوئی ٹیکسچول کی طرح کوئی سیلیبس نہیں ہوتا اس کا، بلکہ کیا کرنا ہے، لیٹر رائٹنگ، یعنی کہ آپ کو رائٹنگ سکل ڈیولپ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، پھر ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ لیٹر لکھتے کیسے ہیں۔ جب رائٹنگ سکل ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ خود بخود انشاءاللہ تعالی اس قابل بن جائیں گے۔ جب آپ ان کو فارمیٹ دیں گے یہاں سے، وہ خود بخود لکھنے کے قابل بن جائیں گے۔ تو اس چیز کو آپ ڈفرینس کو سمجھیے۔ لیٹر رائٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب سے کوئی لیٹر اٹھا کر یاد کر کے جاؤ گے، آپ نوٹس سے کوئی لیٹر اٹھا کر یاد کر کے جاؤ گے، میمورائز کر کے جاؤ گے۔ لیٹر رائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے یو ہیو ٹو ڈیولپ رائٹنگ سکل ان اسٹوڈنٹس۔ ہمیں اسٹوڈنٹس میں، طلباء و طالبات میں رائٹنگ سکل کو ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ سیلیبس دیکھ لیجئے، کسی بھی سیلیبس میں آپ کو یہ مینشن نہیں ہوگا کہ کون سا لیٹر ایگزام میں آئے گا، وہاں صرف لیٹر رائٹنگ لکھا ہوگا، مراسلہ نگاری یا خطوط نگاری لکھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رائٹنگ سکل ہے، اس کا کوئی سیلیبس نہیں ہوتا۔ جب رائٹنگ سکل ڈیولپ ہو جائے گا اسٹوڈنٹس میں تو اوبویسلی وہ خود بخود اس قابل بن جائیں گے کہ وہ لکھ سکیں۔ پھر آپ ان کو فارمیٹ بتائیے، ان کو حیت بتائیے، ان کو سٹرکچر بتائیے کہ لیٹر کا کیا ہوتا ہے، تو وہ خود بخود لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج وہی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پوائنٹ میں ان شارٹ بتاؤں گا یہاں پر، جو جلدی انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگا، زیادہ میں وقت اس میں نہیں لوں گا۔ لیٹر رائٹنگ جو ہے، یہاں پر آپ سمجھیے، جو لیٹر ہے، لیٹر جس کو ہم خط پڑھتے ہیں اردو میں، لیٹر اردو میں اس کو بولتے ہیں خط، لیکن خط کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہم بول کے مترادفات، سینونیمز، جو مترادفات ہیں لیٹر کے ساتھ ساتھ، ہم اردو میں خط جو ہے، خط کے ساتھ ساتھ ہم لیٹر کو اردو میں مکتوب بھی پڑھتے ہیں، مکتوب، اور مراسلہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک لیٹر کو ہم اردو میں تین نام دے سکتے ہیں، مراسلہ، خط یا مکتوب۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیٹر کی جو قسمیں ہیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی دیکھیں گے کہ خط کی کتنی قسمیں ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں خط کو صرف دو قسموں میں
منقسم کیا جاتا ہے یا تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے لیٹر یا خط جو ہے 3 قسم کے ہیں۔ یہ بات آپ پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلا لیٹر جس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں، اگر ہم انگلش کی بات کریں گے اس کو ہم بولتے ہیں فارمل لیٹر، اور یہ جو فارمل لیٹر ہے اس کو ہم پھر انگلش میں اور ایک نام دیتے ہیں آفیشیل لیٹر کا، آفیشیل لیٹر بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں اس فارمل لیٹر کو ہم بولتے ہیں دفتری خط، دفتری خط۔ اس کے بعد دوسرے پر آتے ہیں، دوسرا عام طور پر جو پڑھایا جاتا ہے لیٹر کی قسموں میں وہ ہے انفارمل لیٹر، انفارمل لیٹر۔ اس انفارمل لیٹر کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں پرسنل لیٹر بھی، انگلش میں پرسنل لیٹر۔ پھر جب اردو کی بات کرتے ہیں، اردو میں اس کو بولتے ہیں نجی یا ذاتی خط، نجی یا ذاتی خط، یہ بھی آپ یاد رکھیے، نجی یا ذاتی خط۔ یہ تو ہو گئی وہ 2 قسمیں جو عمومی طور پر سب کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ انگلش کی بات کریں یا اردو کی بات کریں یا کشمیری یا کسی اور زبان کی بات کریں، خط کی اور ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں تجارتی خط، بولیں گے اردو میں تجارتی خط، اور انگلش میں بولتے ہیں بزنس لیٹر، جو اگرچہ 10th کے سیلیبس میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس کو سکپ کیا جائے، بعد میں ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بیسک اس پر یہاں ہمیں یہ بتانا چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ لیٹر کی بیسکلی 2 قسمیں نہیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پھر اوبویسلی ہمیں پڑھانا ہے فارمل یا انفارمل کو جو سیلیبس میں ہے۔ تجارتی لیٹر، تجارتی خط جو ہے یا بزنس لیٹر، یہ سیلیبس میں تو نہیں ہے، یہ 10th میں نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم یہاں پر اگنور کریں، اس کو سکپ کریں، بلکہ یہاں پر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آگے جا کر 12th سے بچوں کے ذہن میں یہی بات بھی جائے کہ نہیں لیٹر تو بزنس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بزنس کا بھی لیٹر ہوتا ہے، بزنس لیٹر بھی ہوتا ہے، تجارتی خط بھی تو ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں گے ان کا یوسیج کیا ہے، یعنی کہ ان کا استعمال ہم کب کرتے ہیں، فارمل یا آفیشیل لیٹر کب لکھتے ہیں، انفارمل کب لکھتے ہیں، نجی یا ذاتی خط وغیرہ کب لکھتے ہیں۔ تو میں ان شارٹ بتانے کی میں بہت زیادہ شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو فارمل لیٹر ہے اس کا میں یہاں پر یوسیج لکھتا ہوں، یہاں پر میں انگلش میں لکھوں گا ٹو ہائر اتھارٹیز، یہ ہم لکھتے ہیں ہائر اتھارٹیز کو، جیسے کسی آفیسر کو لکھا یا نیوز پیپر کے کسی ایڈیٹر، کسی مدیر کو لکھا، ان کو جب ہم لیٹر لکھیں گے تو ہم لکھیں گے فارمل لیٹر۔ اور پھر بزنس یہ انفارمل یا پرسنل لیٹر کی بات کرتے ہیں، یہ ہم لکھتے ہیں ٹو بلڈ ریلیٹیوز اینڈ کلوز فرینڈس، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ ایک تو ہم لکھتے ہیں جو ہمارے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کلوز فرینڈز جو ہوتے ہیں ان کو جب ہم لیٹر لکھتے ہیں عام طور پر انفارمل لیٹر، پرسنل لیٹر یا نجی یا ذاتی خط لکھتے ہیں، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر رہا تجارتی خط، اس کے متعلق آپ یہ تو خود وہیں سے ہی بتا رہا ہے، یہ بزنس پرپز کے لیے لکھا جاتا ہے۔ جب ایک بزنس مین کسی دوسرے بزنس مین کو بزنس پرپز کے لیے لیٹر لکھے، کسی بزنس مسئلے کے حوالے سے، میٹر کے بزنس میٹر کے حوالے سے کوئی لیٹر لکھتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں بزنس لیٹر۔ اس کے ساتھ ہمیں اس ٹائم چھیڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ لیٹر اگر فارمل کی ہم بات کریں گے تو فارمل کے جو پارٹس ہیں وہی انفارمل میں بھی ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ تو پارٹس کو یاد رکھنا زبانی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ایگزام میں جائیں گے وہاں آپ کاؤنٹ کریں گے کہ کیا اگر 5 پارٹس ہیں کیا وہ آ گئے، اگر 6 پارٹس ہیں کیا وہ 6 کے 6 آ گئے، کوئی مس تو نہیں ہوا۔ اب اگر آپ کو پارٹس کا ہی علم نہیں ہے تو کوئی بھی لا علمی میں کوئی بھی پارٹ چھوٹ سکتا ہے، لہذا یہاں پر آپ کو یہ چیز ضروری سمجھنی ہے کہ چاہے لیٹر پرسنل ہو، جس کو ہم بولتے ہیں نجی خط، یا خط دفتری ہو، دونوں خطوط میں ہمیں کیا کرنا ہے کام، پارٹس کو یاد رکھنا ہے۔ تو اب ڈائریکٹ ہم جائیں گے کہ لیٹر کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، یہاں پر میں لکھوں گا
खत के कुल हिस्से, खत के कुल हिस्से। पहला पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उन हिस्सों को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा, उनकी प्लेस भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो पहले हिस्से देखेंगे लेटर के कितने हैं। जो पहला हिस्सा है लेटर का, जिसको हम इंग्लिश में, मैं पहले यहाँ इंग्लिश में लिखता हूँ, थोड़ा टेस्ट आएगा, एक ट्विस्ट आएगा इसमें। इंग्लिश में जो हम लेटर का पहला पार्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस या फ्रॉम एड्रेस। ये बात आप जहन में रखिए कि इंग्लिश में जब हम लेटर लिखते हैं तो पहला पार्ट लेटर का फ्रॉम एड्रेस, जिसे सेंडर्स एड्रेस भी कहा जाता है, ये पहला पार्ट बनता है लेटर का। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स के साथ, तुलबा और तालिबात के साथ क्लास में बात करता हूँ तो उमूमी तौर पर यह देखा जाता है कि उर्दू में उनको पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। तो ये बात आप जहन में रखिए। यहाँ पर मैं इसको पहला पार्ट जो है लेटर का, ये इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ग्रामेटिकल पॉइंट पहले समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे शौकत की गाड़ी, आप इसको समझिए, ये एक जुमला है, एक मुरक्कब है। सेंटेंस को हम उर्दू में मुरक्कब भी बोलते हैं और जुमला भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, फिर जुमले की मुख्तलिफ किस्में होती हैं उर्दू में। उन किस्मों में, जुमले की किस्मों में एक जुमला है जिसको हम बोलते हैं मुरक्कब इजाफी। वो सेंटेंस जिसमें हुरूफ इजाफत का इस्तेमाल हो, वो जुमला जिसमें हुरूफ इजाफत का इस्तेमाल हो। जैसे हुरूफ इजाफत 9 है, जब भी ये 9 किसी जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो उन पर आप यही याद रखेंगे कि ये मुरक्कब इजाफी है, ये जुमला जो है ये मुरक्कब इजाफी है। तो वो 9 क्या है, मैं ज़ुबानी बोलूँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 9 चीज़ों को याद रखेंगे। जब भी ये 9 चीज़ें किसी जगह इस्तेमाल हो किसी सेंटेंस में, आप समझ लीजिए कि ये जो जुमला है ये मुरक्कब इजाफी है। वो क्या है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो ये 9 हो गए। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये 9 सिंबल है, 9 निशानियाँ है, 9 हरूफ है, जिनका जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो जुमला मुरक्कब इजाफी बनता है। तो उस हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर की का हर्फ इस्तेमाल हुआ है या लफ्ज़, शौकत की गाड़ी, तो आप इन शॉर्ट समझेंगे कि मुरक्कब इजाफी है। तो ये की जो है इसको आपने इजाफत तो पढ़ ले, इसको हर्फ इजाफत कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ये उन 9 हरूफ में से एक है जो पहचान है मुरक्कब इजाफी की। उसके बाद याद रखिए कि मुरक्कब इजाफी में जो प्रॉपर्टी की जगह आता है, जो मिल्कियत की जगह आता है, उसको हम बोलते हैं मुज़ाफ। जैसे यहाँ पर गाड़ी है, ये मिल्कियत है, इसको हम बोलते हैं मुज़ाफ। फिर जो मालिक होता है उसको हम बोलते हैं मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ इलैह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसानी के साथ। तो यहाँ पर जो है ये मुज़ाफ़ इलैह हमने किसको बोला, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी मिल्कियत है, उसको हमने बोला मुज़ाफ़ इलैह। उसको हमने लिखा मुज़ाफ़ इलैह, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी मिल्कियत है, उसको हमने पढ़ा मुज़ाफ़ इलैह। अब यही बात आप जहन में रखिए और हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको कहा कि लेटर का जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रॉम एड्रेस। उमूमी तौर पर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि उर्दू में इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा और लिखने से पहले मैं आपको बताऊँगा, मैंने यहाँ पर लिखा था कि लेटर जो है इसको हम खत तो उर्दू में कहते ही कहते हैं, खत के साथ इसको मकतूब भी कहते हैं, ये भी आप जहन में रखिए। और जो फ्रॉम एड्रेस है इसको हम उर्दू में लिखते हैं पता मकतूबी इलैह। अब आपको समझ आया होगा मैंने ये मुरक्कब इजाफी का क्यों जिक्र बीच में छेड़ा। जो लेटर का पहला पार्ट है उसको बोलते हैं पता मकतूबी इलैह। मकतूबी इलैह क्या हुआ, जिसका खत है, जिसका मकतूब है, उसका पता। यानी कि पहले लेटर लिखने वाले को अपना एड्रेस लिखना है, जो खत लिखेगा पहले उसको अपना पता लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, अगर इंग्लिश की बात करेंगे, वो है डेट, जो लेटर में लिखना है। और डेट एक आसान सी चीज़ है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उर्दू में हम बोलेंगे इसको तारीख। ये भी आपको मेंशन करना है लेटर में। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जब हम जाते हैं, तीसरे नंबर पर हम इंग्लिश में जब बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर डेट के बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं।
इंग्लिश में हम डेट के बाद तीसरे नंबर पर सैल्यूटेशन लिखते हैं, और सैल्यूटेशन जो है सैल्यूट से बना है। सैल्यूट कहते हैं हम सलाम को, जब जिसमें हम सलाम करें उसको हम बोलते हैं सैल्यूट। सैल्यूटेशन वहीं से निकला है। तो यहाँ पर आप याद रखिए, यहाँ पर हम उर्दू में दो चीज़ें लिखते हैं, एक तो सलाम भी करते हैं और दूसरा जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको कोई लक़ब देते हैं। जैसे हम अपने बड़े भाई को खत लिखते हैं, हम लिखते हैं प्यारे भाई जान, प्यारे भाई साहब। तो ये जो प्यारे भाई जान या प्यारे भाई साहब, इसको लक़ब बोलते हैं। इसके साथ सलाम का इस्तेमाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, या पहले या बाद में। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाई जान, प्यारे भाई साहब, या प्यारे भाई साहब अस्सलामु अलैकुम, दोनों तरीके ठीक है। तो ये सैल्यूटेशन की जगह आता है, ये दो चीज़ें। और उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? उर्दू में तीसरे वाला सैल्यूटेशन जो है इसको हम उर्दू में बोलते हैं आदाब। आदाब अलकाब। आदाब हो गया सलाम और अलकाब हो गया लक़ब। यानी कि जब हम बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम, ये हो गया आदाब। अलकाब में क्या आएगा? प्यारे भाई साहब, प्यारे भाई जान, तो इसको हम बोलते हैं अलकाब। फिर तीसरे नंबर पर हम जब जाते हैं, तीसरा पार्ट क्या आता है लेटर का, सॉरी चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या आएगा? वो आता है बॉडी। बॉडी लेटर का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जिसमें हम मेन मैसेज जो हमारा है, जो बुनियादी तौर पर हमें मैसेज देना है, उस वाले हिस्से को हम बोलते हैं, उस पैराग्राफ को हम बोलते हैं, फिर वो एक हो या दो हो। तो कोशिश करनी चाहिए लेटर शॉर्ट ही होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ में बात कंप्लीट करने की। जो बॉडी है फोर्थ पार्ट, इसको फिर हम उर्दू में बोलते हैं मतन, या नफ्स मजमून भी इसको पढ़ते हैं, नफ्स मजमून। उसके बाद फोर्थ पर आएंगे, सॉरी फिफ्थ पर आएंगे। फिफ्थ पार्ट बनता है लेटर का बॉडी के बाद, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, अभी सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन में हम लिखते हैं आमतौर पर, जैसे इंग्लिश की बात करेंगे तो हम लिखते हैं योर्स लविंग सन, योर्स लविंग ब्रदर, योर्स ओबीडियंटली, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो उर्दू में इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? आपका प्यारा भाई, आपका फर्माबरदार बेटा, ऐसा कुछ लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और इसको हम उर्दू में बोलते हैं सब्सक्रिप्शन को खातिमा। उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट पर, सिक्स्थ पार्ट बनता है लेटर का, उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर। अगर इंग्लिश की बात करेंगे सिग्नेचर, और जब उर्दू की बात करते हैं तो आप ये याद रखिए, उर्दू में हमने लेटर शुरू कहाँ से किया? पहला पार्ट क्या था? पता मकतूबी है। सिर्फ यहाँ पर लेटर लिखने वाले ने अपना एड्रेस लिखा था, अपना नाम नहीं लिखा था। तो सिग्नेचर में वो अपना नाम लाता है लास्ट पर, उसको हम बोलते हैं, पहले को क्या बोलते हैं एड्रेस को? पता मकतूबी ले। लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं हम नाम मकतूबी ले, खत लिखने वाले का नाम। तो ये हो गए 6 पार्ट्स। तो ये 6 पार्ट्स लेटर में होना ज़रूरी है। अगर ये 6 पार्ट्स नहीं है, इनको ज़ुबानी भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपको ज़ुबानी याद नहीं है तो एग्जाम में अगर कोई पार्ट छूटा तो आपको कैसे पता चलेगा? आप यहाँ से याद करके गए थे, हालांकि याद करना कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ही वो एजुकेशन है, ये बात याद रखें। मेमोराइज करना एजुकेशन का पार्ट नहीं है या एजुकेशन नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको लाजमन याद करना है, जैसे उसूलों की बात है, उसूलों को सीखना है, ज़ुबानी याद रखना है। इसी तरह ये उसूल है, इनको ज़ुबानी याद रखना है। लेकिन हम सब कुछ याद करने बैठ जाते हैं, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का सेंस हमें लेना है, ये है आपके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हो, ये एजुकेशन है। तो ये जो है, अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं है कि कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन सा पार्ट इस लेटर में होता है, तो बीच में कोई पार्ट छूट भी सकता है। अगर आप याद भी करके गए हैं लेटर, फिर अगर कोई पार्ट छूटा, आप अपनी जगह मुतमईन रहेंगे कि हमने लिखा, लेकिन उसका बीच का कोई पार्ट मिस होगा, मफकूद होगा, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपका खत जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, या अगर होगा भी तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये मैं पहले रब करूँगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ कि इसको हम लेटर को हम फिर इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी कि हम ये देखेंगे अब कि लेटर जो है वो लिखते कैसे हैं, क्योंकि इन पार्ट्स को फिर अप्लाई भी करना है, इनको हमें किसी जगह किसी सीक्वेंस में रखना भी है। उसके लिए मैं काम क्या करूँगा,
मैं यहाँ पर कुछ लाइन्स खींचूंगा। जैसे यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, पहले यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। इसको आप याद रखिए, ये बॉक्स क्या है। मैंने एक बॉक्स बनाया और आमतौर ये मैंने एक जदवल बनाया, एक डब्बा बनाया, और आमतौर पर हम देखते हैं स्क्वायर जो होता है उसके 4 साइड्स होते हैं और फिर 4 कोने होते हैं। अगर हम बात करेंगे इस कोने की, इस डब्बे की, आप ये समझ लीजिए जो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया, डब्बा बनाया, इसका चेहरा आपकी तरफ है, आपकी तरफ है। जैसे मेरा चेहरा आपकी तरफ है, तो मेरा चेहरा आपकी तरफ है, मेरा राइट साइड ये बनेगा। तो ऑब्वियसली जब ये बॉक्स का चेहरा आपकी तरफ है, इसका राइट साइड ये बनेगा, लेफ्ट साइड ये बनेगा, फिर टॉप ये बनेगा यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, और ये वाला बॉटम साइड बनेगा, नीचे वाला हिस्सा। तो हम ऊपर की साइड से जाएंगे राइट साइड में, ये है इसका राइट साइड और ये है ऊपर साइड, ये है ये वाला कॉर्नर, ये जो कोना है ये वाला, ये राइट साइड में है और टॉप में है। इसको हम बोलते हैं टॉप, RIGHT, राइट हैंड कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये भी अभी आपको वाज़ेह हो जाएगा। फिर इसी साइड से जब नीचे आते हैं, ये भी राइट हैंड कॉर्नर है, लेकिन ये टॉप नहीं, ये बॉटम में है। इसको हम लिखेंगे बॉटम राइट हैंड कॉर्नर। फिर लेफ्ट साइड में जाइए, टॉप में जाइए, ये है टॉप और लेफ्ट साइड, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड, इसको बोलेंगे हम टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, इसको हम बोलेंगे बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर। अब मैंने ये क्यों बनाया, ये जदवल, ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया, क्योंकि लेटर लिखने के बहुत से तरीके हैं। उमूमी तौर पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, उनको लगता है कि जो हमने पढ़ा है बस उसी अंदाज में लेटर लिखा जाएगा। नहीं, लेटर लिखने के कई फॉर्मेट है, कई स्ट्रक्चर है, कई हाइटें हैं, कई शक्लें हैं। कुछ लेटर टॉप राइट हैंड कॉर्नर से शुरू होते हैं और कुछ खतूत इसी बाय बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर ख़त्म होते हैं। कुछ लेटर्स टॉप राइट कॉर्नर से शुरू होते हैं, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर ख़त्म होते हैं। तो कुछ लेटर्स टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से शुरू होते हैं, बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर ख़त्म, या बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ख़त्म। इसीलिए ये बॉक्स का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आप यहाँ से मैं एक फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, एक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, आप दूसरी जगह कोई दूसरा टीचर आपको कोई दूसरा फॉर्मेट पढ़ाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या मैं गलत हूँ। उसका मतलब ये होगा कि लेटर लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद कोई तरीका ईजाद करें, नहीं, बल्कि जो तरीके बनाए गए हैं अभी तक हम उनका ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसके कई इस्तेमाल मतलब कई तरीके दिखाए गए हैं, तो उनको समझने के लिए मैंने ये बॉक्स यहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर मैं और एक बॉक्स बनाऊंगा, बड़ा सा बॉक्स। एक्चुअली ये नहीं कहा जाएगा, इसको हम कहेंगे, ये आप समझिए मार्जिन है, और फिर यहाँ से एक लाइन है, आप समझिए समझने के लिए है। कॉपी पर आपके एग्जाम में ये लाइन नहीं डालनी है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ से शुरू कीजिए, ये वाला अगर हम कॉर्नर देखेंगे, ये आता है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। यहाँ पर मैं काम करूँगा, यहाँ मैं एक लाइन डालूंगा ऐसे, फिर इसी के साथ और एक लाइन डालूंगा ऐसे, ये एक भी हो सकती है। तो इन दो लाइनों में हम, इन दो सतूर में हम लिखेंगे पहला पार्ट लेटर का, जो है पता मकतूबी इलैह, पता मकतूबी इलैह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम एड्रेस। तो इन दो में लिखेंगे, एक में भी लिख सकते हैं लेकिन दो में भी बेहतर रहता है। उसके बाद क्या करना है, इसी लेफ्ट हैंड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ही रुकना है, फिर गैप छोड़ना है। इसके बाद गैप छोड़ना, काफ़ी गैप, जो दूर से दिखे भी ये गैप है। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, उसमें दूसरा पार्ट लाना है, जिसको हम बोलते हैं डेट या तारीख, उर्दू में तारीख, इंग्लिश में कहेंगे डेट। उसके बाद ये तो हो गया दूसरा पार्ट। फिर तीसरे पार्ट के लिए भी हम गैप छोड़ेंगे, लेकिन वो कहाँ से शुरू करेंगे तीसरा पार्ट, वो मार्जिन से नहीं करेंगे, बल्कि जो डेट है, डेट दूसरा पार्ट, इसका मिडिल देखेंगे, इसका मिडिल कम से कम ये बनता है, इस मिडिल से नीचे आएंगे गैप के बाद, यहाँ से हम शुरू करेंगे तीसरा पार्ट। क्योंकि तीसरा पार्ट क्या है, आदाब व अलकाब, इसमें आदाब भी आना चाहिए, यानी सलाम, और लक़ब भी आना चाहिए। लक़ब के लिए क्या करेंगे, इसको भी 50-50 करेंगे, जो यहाँ तक आता है, यहाँ से ऐसी ही एक लाइन डालेंगे। तो ये दो लाइनें जो है इनके दरमियान की गैप नहीं है, गैप यहाँ है। तो ये दो लाइनें जो है
दो सितूर, ये और एक पार्ट बनेंगे जो डेट के बाद हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं आदाब व अलकाब। इसमें हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम, प्यारे भाई जान, भाई साहब वगैरह वगैरह, प्यारे दोस्त, वो भी इसमें लिखेंगे। तो अस्सलाम, ये जो आदाब व अलकाब हो गया। उसके बाद गैप छोड़ेंगे, गैप, फिर हम शुरू करेंगे यहाँ से। देखो ये पहले गैप छोड़ेंगे, ये यहाँ तक हो, आप कम से कम इतना गैप छोड़िए, फिर आप यहाँ तक जाइए, यानी कि यहाँ से शुरू कीजिए। आदाब व अलकाब की जो पहली लाइन है, इसकी सीध में इसके बराबर होना चाहिए। हम यहाँ तक एक लाइन डालेंगे, इस मार्जिन तक, फिर मार्जिन टू मार्जिन विदाउट एनी गैप, बीच में कोई गैप नहीं छोटा, और एक लाइन डालनी है, फिर और एक लाइन डालेंगे। हम चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, बट हमें इस टाइम सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। ये है अगला पार्ट, लेकिन आप गैप देख लीजिए, बीच में गैप भी है। इस वाले ये वो वाला पार्ट है जो आदाब व अलकाब के बाद आता है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं मतन या नफ्स मजमून। तो इसमें आप वो मैसेज लिखेंगे जो हमें देना है। लेकिन शुरू कहाँ से किया? यहाँ से शुरू किया, मार्जिन टू मार्जिन नहीं, फिर बाकी सारी लाइन्स जो है मार्जिन टू मार्जिन जाती है। उसके बाद हम आएंगे बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर, यानी कि यहाँ पर आएंगे, यहाँ सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम गैप छोड़ेंगे। जहाँ पर हमारी बॉडी ख़त्म हुई है, हमारा मतन ख़त्म हुआ है, उसके बाद गैप छोड़ेंगे, फिर इस साइड में गैप के बाद एक लाइन डालेंगे, और इसको हम बोलेंगे, जो 5th पार्ट है जिसको हम बोलते हैं खातिमा, इंग्लिश में बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यहाँ नीचे थोड़ा सा गैप छोड़कर एक लास्ट वाला पार्ट लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिग्नेचर, या उर्दू में बोलते हैं नाम मकतूबी इले, नाम मकतूबी इले। तो इनमें आप क्या करेंगे? लेटर भरेंगे, इनमें आप लेटर खत लिखेंगे। तो काम क्या करेंगे? ये इन 2 में आप लिखेंगे पता मकतूब इले, लेकिन उसके बाद गैप छोड़ेंगे दूसरे पार्ट के लिए। अगर गैप नहीं है बीच में तो ये इसके साथ काउंट होगा और ये गलत हो जाएगा। गैप का होना लाजमी, जहाँ नया पार्ट शुरू होता है वहाँ गैप, जहाँ नया पार्ट शुरू होता है वहाँ गैप। जैसे ये 2 पहली लाइन्स जो है, पहली 2 सितूर, इनमें गैप इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ही पार्ट की दो हिस्से हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए बीच में यहाँ गैप है, फिर तीसरे पार्ट के लिए यहाँ गैप है। ये 2 लाइनें गैप नहीं है क्योंकि एक ही पार्ट है। फिर यहाँ गैप है, यहाँ गैप क्यों नहीं है? क्योंकि ये मतन का सारा हिस्सा एक ही है। फिर यहाँ पर गैप है क्योंकि यहाँ से नया पार्ट शुरू होता है। इसी तरह फिर नीचे भी थोड़ा सा गैप है। इसमें जब आप लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका लेटर बराबर आएगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ से ये बराबर इसकी लेवल होनी चाहिए, यहाँ से अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। आप इससे बाहर नहीं जा सकते, इससे अंदर नहीं जा सकते, बराबर यहाँ से आप शुरू करेंगे। अगर हम लेवल देखेंगे ये बराबर टच होनी चाहिए सारी लाइन यहाँ से, फिर इसी तरह यहाँ से सारी लाइन टच होनी चाहिए। जो आप लिखेंगे वो इसके साथ बराबर इसके अंदर और इसके बाहर नहीं रहना चाहिए। सिर्फ गुंजाइश कहाँ पर है? गुंजाइश एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम थोड़ा मार्जिन से आगे आएंगे, यहाँ आएंगे। फिर ये जो पहली लाइन है यहाँ पर भी थोड़ा मार्जिन से अंदर आएंगे। फिर और एक चीज़ देखेंगे, अगर लास्ट लाइन मिसाल के तौर पर मतन हम बॉडी लिख रहे हैं, हमारा जो मैसेज है वो लास्ट लाइन में यहाँ पर ही ख़त्म हुआ, वो मार्जिन तक नहीं पहुँचा, वो फॉर एग्जांपल यहाँ तक ख़त्म हुआ, तो ये ठीक है, हम यहाँ तक लिख सकते हैं, ये गैप छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैटर ये नहीं है कि हमने यहाँ से टच क्यों नहीं किया, क्योंकि जब लेटर यहीं पर ही ख़त्म हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लेटर इसके बाद भी लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसको मार्जिन से अंदर या बाहर रखेंगे, वो गलत है। लास्ट लाइन पर आप रुक सकते हैं जहाँ पर भी लास्ट लाइन ख़त्म हो जाए, लेकिन बाकी आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। और अरबी में कहा जाता है वबी ज़िद्दिहा ततबय्यनुल अश्या। अगर आप इस फॉर्मेट को शीशे के सामने रखेंगे, शीशे के सामने आगे, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा वो इंग्लिश का फॉर्मेट होगा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा। उसमें क्या होगा, ये पता मकतूब इले यहाँ आएगा, तो इसमें आप इंग्लिश लिख सकते हैं, इसका आप उल्टा कर दीजिए वो इंग्लिश बनेगा अगर आप इसको आईने के सामने रखेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है इसको आप जहन में रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।